हम जीत गए, हम जीत गए। Done it. वेलकम बैक। यस, हम जीत गए। सीरीज जीत गए। मेरा प्रेडिक्शन रॉन्ग हुआ, मुझे खुशी हुई। इंडिया फर्स्ट बैटिंग करके भी जीत गए। इन कोहली स्टाइल। यस, बेन स्टोक्स। यस, बेन स्टोक्स। यस। So finally, yet another comeback from India. England as usual टॉस हार गए। ये तो अभी मेरे को लगता है मेंशन करना ही नहीं चाहिए कि टॉस हार गए। इंग्लैंड put us to bat and yeah, so we scored 328 for all out and yeah, so it looked like a below par score this time around because of the previous game, but turns out that lightning doesn't strike twice, right? वापस ये बार-बार इन लोग जो बोल रहे हैं कि हम बेस्ट टीम है और ये अप्रोच है और हर बार चेस कर लेंगे, वो हर बार नहीं होता है. So this time India proved that and we whitewashed them in terms of series. मतलब जो तीन सीरीज था, तीन फॉर्मेट, 3-0 से इंडिया जीत गई. And India should be called comeback kings now of cricket because ऐसा लग रहा है कि हर बार कमबैक करते, कोई भी सीरीज हो, कोई भी फॉर्मेट हो, कमबैक फिक्स ही अपना. तो India is officially the comeback kings. And yeah, so coming back to our match, India scored 328, started with a bang. This time 100-run partnership, not from Jason Roy and Johnny Bairstow. It was Rohit Sharma and Shikhar Dhawan, and that partnership was just what India needed. It gave us the momentum right from the start. Then spinners came and India lost wickets in bulk. मतलब वो तो समझा ही नहीं क्या था. Then after that, Rishabh Pant and Hardik Pandya played. Their partnership was the highlight of our innings, and they took the score till 328. And then there was one cameo from Shardul Thakur. So brilliant batting performance from India. Not brilliant, but yeah, it was decent total. And we believed that we could defend, and that's what happened. And this time around, in England's response, we picked up early wickets right at the start, which was required. It was all Bhuvi in power play. He picked up 2 wickets. In fact, he picked 3 wickets, but Ben Stokes' catch was dropped by Hardik Pandya. After that, so we kept picking up wickets. Then Shardul Thakur has always picked wickets in the series, and he did that today as well. And last में एकदम बोल एकदम ऐसा लग रहा था कि हारने वाले. Last we got them, but we eventually managed to win. So a comprehensive victory, and yeah, very happy about the series. So कैसा था तेरे हिसाब से assessment पूरे गेम का? क्लोज एनकाउंटर एंड थ्रिलिंग मैच वाज अ ड्यू, क्योंकि 2 बेस्ट टीम कम्पीट कर रहे थे और अब तक एक भी से क्लोज एनकाउंटर लास्ट ओवर ये फिनिश नहीं था हुआ था अब तक. सो मेरे को लगता है ये प्रॉपर सीरीज एंड था एंड पूरे टूर के लिए प्रॉपर एंड था. दिस इज अ वेरी डिफाइनिंग एंड इट वाज स्लैप टू एक्सपर्ट्स फेस जो बोल रहे थे कि इंग्लैंड अप्रोच बेटर है इंडिया से. इंडिया ने प्रूव कर दिया ये. सो जैसे इंडिया ने स्टार्ट किया, लाइक डिट की 100 रन का पार्टनरशिप किया, थोड़ा कॉशियसली खेले, बैड बॉल्स पे अटैक किया एंड ज्यादा अटैकिंग भी नहीं खेले, थोड़ा टिक के खेले. बट बाद में एट द एंड ऑफ द इनिंग्स मेरे को लगा बिलो पार स्कोर था. मतलब थोड़ा आई एक्सपेक्टेड कि इंडिया 350 360 तक मारेगा एंड बट देन आई सॉ दैट सिर्फ 332 ने. तो मुझे लगा शायद से चेस कर लेंगे कंसिडरिंग देयर बैटिंग डेप्थ. But then it was brilliant bowling performance from Bhuvneshwar Kumar and then Shardul Thakur in middle overs. So perfect end to the series मेरे हिसाब से. Absolutely, हाँ. वो actually यही था. मतलब अपन विकेट्स नहीं ले रहे थे पावर प्ले में एंड वही उन लोग का जो स्ट्रेंथ है, ये उनका ओपनिंग ही स्ट्रेंथ है. मतलब अगर जेसन रॉय, जॉनी बेस्टो स्टार्ट नहीं देते ना, तो उनका मिडिल ऑर्डर वी हैव सीन राइट थ्रू द सीरीज दे आर नॉट एबल टू विन गेम्स फॉर देम. मिडिल ऑर्डर उन लोग का एकदम ही खराब खेल रहा है. तो वो अगर विकेट्स दिया तो उन लोग का अप्रोच नहीं चलता. तो हाँ, वो उनका एक
Exactly. They were too dependent on their top order. कि अगर if they put on 100 run partnership, then middle order carry forward the chase and Ben Stokes then contribute. But आज वो expose हो गया उनका middle order, right? But then मेरे को लगा easily जीत जाएंगे इंडिया 40 ओवर तक तो. But then it was brilliant knock from Sam Curran and इंडिया ने बहुत lightly ले लिया एंड में. तो चिल्ड हो गए थे कि जीत गए, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था आई थिंक. बट देन इट वाज गुड कमबैक फ्रॉम नटराजन. लास्ट ओवर वाज ब्रिलियंट. सो मूविंग फॉरवर्ड, तेरे को क्या लगता है व्हाट वेंट रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ इंग्लैंड? मतलब व्हाट माइट हैव दे डिड डिफरेंटली? उनका उन लोग बोलते हैं कि दे हैव डिस्ट्रक्टिव अप्रोच टू द गेम एंड मतलब उनका मॉडर्न वे ऑफ प्लेइंग जो उन लोग बोलते हैं, ठीक है, इट इज गुड, उन लोग करते हैं, अच्छा खेलते हैं. बट आई थिंक कि अगर विकेट गिर जाता है ना तो थोड़ा संभल के खेलना चाहिए था. जैसे व्हेन जॉनी बेस्टो एंड जेसन रॉय गॉट आउट, आई थॉट बेन स्टोक्स took too many risks there. He shouldn't have taken that risk. He should have taken some amount of time to get in and pitch. थोड़ा सेटल होना था उसको, वहां पे शॉट्स खेलना नहीं था. इनफैक्ट ही लुक सो स्क्रैची देयर. वो उसका कैच भी छूटा एंड उसका टॉप एज लग रहा था. 116 वाज टॉप एज, सो ये लोग रियली स्क्रैची देयर. सो आई थॉट वहां पे उन लोग को थोड़ा लेड बैक अप्रोच लेना था कि जैसे इंडिया खेलती है कि एक जना एंकर करना चाहिए. तो वो चीज उन लोग, मुझे नहीं लगता कि उन लोग को अगर मतलब गेम सिचुएशन के हिसाब से खेलना चाहिए. ओडीआई इज नॉट जो इन लोग बोलते हैं कि बस आके मारो बटे विकेट गिरे, दैट इज नॉट हाउ ओडीआई. जो मॉडर्न गेम जो लोग बोलते हैं कि कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे थे ना कि इंडिया इज आउटडेटेड एंड देयर अप्रोच इज आउटडेटेड, ऐसा नहीं होता. ओडीआई यू हैव टू प्ले एज पर सिचुएशन, नो मैटर हाउएवर द पिच इज, यू हैव टू प्ले एज पर सिचुएशन. तो पिछले मैच में उन लोग का वो अप्रोच काम आ गया बिकॉज देयर बैट्समैन प्लेड रियली वेल एंड अपन विकेट्स नहीं ले पाए. बट दिस टाइम अराउंड दे हैड टू प्ले अ लिटिल कॉशियसली व्हिच दे फेल्ड टू डू. आई थिंक दैट इज वेयर दे वेंट रॉन्ग. आज अपना जो सिलेक्शन था मुझे थोड़ा weird लगा because I was expecting Chahal to play today. So do you think that India read the pitch wrong, even though we won the match? But do you think that India read the pitch wrong because it was turning quite a lot in the first inning, and our main spinner was Krunal Pandya. So I thought they could have gone with Chahal instead of one fast bowler because Prasidh Krishna any which way bowled 8 overs and he went for something more than 10 in an over. So maybe Prasidh Krishna की जगह चहल खिला सकते. तुझे क्या लगा कि खेलना चाहिए था, नहीं खेलना चाहिए था? Yeah, I also expected Yuzvendra Chahal to play, but it was surprising selection कि नटराजन को लिया and we had only one spinner and also he bowled only 4 overs. So वो भी है ना, क्वालिटी ऑफ स्पिनर भी मैटर करते हैं कि हमारे उतना क्वालिटी नहीं था. यंग था वो कृणाल पंड्या, नया है भी, तो उसको तो मार पड़नी थी. हाँ, सरप्राइजिंग था, युजवेंद्र चहल रहना चाहिए था. बट अभी मैच जितने के थे हिंडसाइट में देख के ऐसा लगता है कि अच्छा उसको नहीं लिया बिकॉज नटराजन पिक टू इम्पोर्टेंट विकेट्स. बेन स्टोक्स का विकेट लिया उसने, तो वो देख के. और डेथ ओवर भी बहुत अच्छा डाला. सॉरी, एक ही विकेट लिया, नॉट 2 विकेट. और डेथ ओवर भी बहुत अच्छा डाला. सो अभी अगर युजवेंद्र चहल खेलता तो इट माइट बी अ प्रॉब्लम हो जाता कि कौन डेथ ओवर डालता. मे बी प्रसिद्ध कृष्णा वुड हैव बोल्ड एंड पता नहीं क्या होता. देन व्हाट वुड बी द रिजल्ट. इनसाइड में देख के और इंडिया जीत जाती है तो एवरीवन इग्नोर्स दिस. बट हाँ, तो राइट बोला कि दे माइट हैव मिसजज्ड द पिच एंड it was turning quite well, so they could have gone for Yuzvendra Chahal. और मुझे लगता है क्वालिटी है उसके पास और अच्छा स्पिनर है, तो मे बी he would have got crucial wickets as well. तो वो मतलब हाइंडसाइट पे जब ये दिखते हैं स्कोर जो बॉलर को पड़ी है उसको रिप्लेस कर दो, चल ऐसे ही लगता. बट इसका तो नहीं कर सकता क्योंकि उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया था and he had to bring Natarajan because death bowler की कमी हो रही थी. तो ये मैच के लिए बोल सकते हैं कि it was a good selection, but I still thought that it was a reactive selection. पिछले मैच में जो हुआ ना उसके हिसाब से उसने सिलेक्शन किया था and not looking at the pitch. But ठीक है, it worked well and अच्छा है. तो बॉलर्स का बात करते हुए, डू यू थिंक भुवनेश्वर इज मोस्ट स्किलफुल बॉलर करंटली इन वाइट बॉल क्रिकेट? तेरे को क्या लगता है? नो डाउट अबाउट इट. मतलब उसने ये सीरीज और T20 सीरीज दोनों में प्रूव ही कर दिया. उसका खाली एक ये था ड्रॉबैक, नॉट ड्रॉबैक, बट इफ यू वर टू निटपिक वन डिसएडवांटेज,
और वन वीकनेस वो था कि विकेट टेकिंग एबिलिटी, जो उसने आज दिखा दिया कि आज इनफैक्ट ही वाज सो एंग्री इफ यू सॉ His celebration. हाँ. बट आई थॉट ही जस्ट केम विद दैट इंटेंट कि आज तो मैं ओपनर्स को मैं ही लूंगा, और उसने एक्चुअली वही किया. एंड आल्सो इट वाज अ ब्रिलियंट टैक्टिक फ्रॉम whoever's decision it was कि पंत को आगे खड़ा रखा एज अ कीपर व्हेन भुवनेश्वर वाज बॉलिंग टू बेयरस्टो, तो बेयरस्टो का स्टैटिक हो गया क्रीज, and that is what helped him to get him adjust LBW. That was one brilliant tactic. But Bhuvaneshwar, yes, I mean, is in terms of, and we have discussed in the past कि 140 145 पे तो आजकल सब bowlers डालते हैं, लेकिन 130 वाला हैरान accurate डालता है और swing करता है both the ways. So that is really nowadays it is like you could say a rare commodity to have in a team. So he's really crucial, and he's really crucial for us in white ball in both T20 as well as ODI. In the coming T20 World Cup, he's going to be our most crucial bowler. Spider-Man आज चार जाएगा उसके बारे में क्या बोले मतलब मजा आ गया आज. वो ऐसा लग रहा था कि मतलब उसके वो नहीं रहता तो ये मैच हार जाते. as simple as that. हार्दिक पांड्या खेला, अच्छा खेला, वो तो है ही, बट it was Rishabh Pant who took that attack to England. तो कैसा लगा तुझे उसका परफॉर्मेंस हार्दिक ऋषभ पंत? मतलब वो तो सुपर हीरो है यार, स्पाइडरमैन है सच में. मतलब उसने अभी वो हैबिट डाल दी है जो टेक इंडिया आउट ऑफ टफ सिचुएशन व्हेन उसका अब हैबिट हो गया है वो, ऐसा लग रहा है, और उसको मजा आ रहा है वो चीज में. वो लिटरली उसके बैटिंग में दिख रहा है. एंड एज आई टोल्ड इन लास्ट वीडियो कि इंडिया शुड डिफाइन हिज रोल, ऐसा चेंज नहीं करना चाहिए. आज कैसे उसको 4 नंबर पे भेजा एंड ही अगेन प्रूव्ड, unfortunately missed out on century. That's one thing, but then it was terrific ना कि अभी उसको थोड़ा एक ही चीज है, उसको देखना चाहिए कि he should get those centuries and not miss out. कितना 30 रन से 70 रन पे आउट हुए लास्ट मैच में, 78 पे आउट हुआ, लास्ट मैच 77 पे आउट हो गया. सो वही एक चीज है. वरना तो ऐसा है कि वो जिस दिन खेलता है तो मैच बॉलर्स पुट देयर हैंड्स डाउन, मतलब तू किधर भी डालो मारेगा ही वो जिस दिन उसका लिटरली यार. मतलब और उसका बैटिंग परफॉर्मेंस उसकी कीपिंग स्किल्स में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है. इफ यू हैव सीन, उसने 2-3 बहुत अच्छे डाउन द लेग बॉल्स सेव किया जो दे माइट हैव गॉन फॉर वाइड फॉर. टॉकिंग अबाउट स्पिनर्स, तूने जो बोला कि वी शुड हैव वन बैट्समैन, क्या मतलब डू यू थिंक दिस इंडियन बैट्समैन आर ससेप्टेबल टू स्पिन? वल्नरेबल लग रहे तेरे को ऐसा टॉप ऑर्डर एक्सेप्ट ऋषभ पंत, मतलब ही प्लेज स्पिन वेरी वेल, दिख गया आज. हार्दिक पांड्या भी अच्छा खेलता है वैसे, बट टॉप ऑफ द ऑर्डर की टॉप ऑर्डर की बात करें जो टॉप 3 या टॉप अपना जो है राहुल हो गया, टॉप मतलब ससेप्टेबल नहीं बोल सकते, बट रन स्कोरिंग में थोड़ा इशू हो रहा है. मतलब रोहित शर्मा इतना स्ट्रगल नहीं करता, जब उसका दिन रहता है तो सबको मारता है, फास्ट बॉलर हो स्पिनर हो, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि इज नॉट रियली रीडिंग ऑफ द हैंड, वैसा एकदम बोलते हैं ना इंस्टिंक्टिवली खेल रहा है स्पिन को, तो वो ऐसा लगता है रोहित शर्मा का. कोहली स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रगलिंग नॉट इन टर्म्स ऑफ टेक्निक, आई थिंक स्ट्रगलिंग इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट. वो क्या करता है कि एक चीज तो वो मुझे ऐसा लगता है कि उनका मोइन अली और रशीद को थोड़ा अंडर एस्टिमेट करता है. मतलब उसको ऐसा लगता है कि ज्यादा स्पिन ने, तो ही गेट्स बीटन आउटसाइड एज से बीट हो जाता है या तो इनसाइड एज से बीट हो जाता है. और आज जो बॉल पे जो आउट हुआ वो बॉल ऑलमोस्ट ये फुल बॉल नहीं था, वो मतलब ये था ये था फुल बॉल नहीं था, वो थोड़ा पीछे था, और वो अगेंस्ट द स्पिन मारने का, तो वो मुझे शॉट सिलेक्शन गलत लगा. अगर विद द स्पिन डाउन द ग्राउंड खेलता तो शायद से मतलब आउट नहीं होता ऊपर पे. तो वो शॉट सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम था, और आई थिंक वो थोड़ा दिमाग में वो थोड़ा बहुत लीनियंटली खेलता है. वो थोड़ा रिस्पेक्ट उसको देना चाहिए. रिस्पेक्ट मतलब उसको थोड़ा ऐसा लगता है कि फोकस लूज कर देता है सिंगल देने के चक्कर में. तो वो है, मतलब क्या बोल सकते हैं कि, एंड लेग स्पिनर से तो उसका इशू आईपीएल में भी देखा है बहुत बार की, लेग स्पिनर से इशू, पर्टिकुलरली रशीद खान वगैरह उसके सामने तो वो रीड ही नहीं कर पा रहा. तो ये जेन्युइन कंसर्न है बोल सकते हैं, ससेप्टेबल नहीं बोल सकते, बट कंसर्न है. दे हैव टू वर्क टू रेक्टिफाई दिस, तो ही वर्ल्ड कप जीतेंगे. तो ये तो इशू होने वाला है, हर बार ऋषभ पंत नहीं बचाएगा स्पिनर से. तो आई थिंक तेरे लिए हु वुड बी द मैन ऑफ द सीरीज, मतलब तेरे लिए तो क्या लगता है? मैन ऑफ द सीरीज, टफ कॉल एक्चुअली.
I think it should be Bhuvneshwar Kumar because Bhuvneshwar और कौन है कंटेंशन में? मेरे लिए भुवनेश्वर कुमार ही था, बट देन लास्ट में शार्दुल ने एक विकेट ले लिया, देन मोस्ट लीडिंग विकेट टेकर में शार्दुल ठाकुर ऊपर आ गया. ही टुक 8 विकेट्स इन द सीरीज एंड भुवनेश्वर बाकी सब 7 पे था. अगर भुवनेश्वर 8 पे होता तो मे बी उसको मिलता, बट ऑल्सो शार्दुल ठाकुर कंट्रीब्यूटेड विद बैट ना, मतलब उसने बैटिंग में भी थोड़ा रन स्कोर किया, तो मुझे लगता है उसको ही देंगे. आई डिडंट सी द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन. तो भी भाई आईपीएल एक्साइटेड? तो अभी हाँ आईपीएल तो एक्साइटेड ही है. अभी ये भी देखते हैं हाउ इंडिया परफॉर्म्स इन इंग्लैंड. अभी मजा आएगा उधर जाके. कैसे उधर भी क्या अवे टूर भी जीत गए, मतलब नेक्स्ट लेवल. देन वी डिजर्व टू बी नंबर 1 टीम. अभी तो नंबर 2 पे, फिर नंबर 1. एक्साइटेड है कि नहीं? मतलब आईपीएल के लिए एक्साइटेड है कि नहीं? अरे भाई थाला धोनी को देखने मिलेगा, वही एक्साइटमेंट है मैन. बाकी सब प्लेयर्स को देख ही रहे. सीएसके मैन सभी येलो पेन के आएगा. सीएसके को अभी से सपोर्ट कर रहे हैं. हाँ ट्रेनिंग चालू हो गया. पुजारा अभी का भी क्लिप्स देखता हूँ, ट्रेनिंग वगैरह चालू कर दिया क्वारंटाइन में उसने. देख के ऐसे अच्छा लग रहा है. मजा आएगा. पहला मैच किसका है? सिर्फ धोनी एंड सीएसके के लिए देखना है आईपीएल. ऐसा देखा जाएगा तो, वरना तो एक्सपेक्टेड है यार. मुंबई इंडियंस कितना वन साइड टीम है भाई. फाइनल तो फिक्स है, मुंबई इंडियन वर्सेस डैश ऐसा है. देखते हैं. we'll have a separate section for this IPL. ऐसे भी it is a festival kind of ये और तो बड़े समर वेकेशंस. हाँ मैची एमएसडी को देखने में बहुत मजा आता है. Even I am looking forward. That is my motive of. हाँ मजा आता है. ऐसा नहीं कि दूसरा मैच नहीं मजा आता है. ये एमएसडी मतलब बोली नहीं. इमोशन. He is the emotion.